Wonderful greetings to all of you, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. How are you all today? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बेटे बेटियां, आप सबके लिए अद्भुत शुभकामनाएं। आप सब आज कैसे हैं? Great joy to meet you again in this program. इस कार्यक्रम में फिर से आपसे मुलाकात करना बड़ी आनंद की बात है। And I thank God for the wonderful blessings you are receiving through this program. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम के द्वारा जो अद्भुत आशीष जो आप प्राप्त कर रहे हैं। Thank you for writing your feedback and your comments about how much you are edified and blessed through this program. अपने विचार और अपने प्रत्युत्तर भेजने के लिए धन्यवाद कि किस रीति से आप इस कार्यक्रम में आशीष पाए करके आप बताते हैं। In this episode, we are going to focus on the identity of the two witnesses. इस कार्यक्रम में हम ध्यान देने वाले इन दो गवाहियों की पहचान के ऊपर। And before we go on that, उसमें हम जाने से पहले just for you to remember what we studied last week, पिछले हफ्ते हमने क्या अध्ययन किया है करके वो आपको याद दिलाने के लिए let me repeat to you what I said last week. पिछले हफ्ते जो मैं आपको बताया हूँ उसे मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ। When God sent the prophet Moses to Egypt to set the children of Israel free, जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश में भेजा ताकि इस्राएलियों को स्वतंत्र कर सकें, Moses felt inadequate by himself, so God also sent his brother Aaron with him. जब मूसा ने अपने आप में सोचा कि वो कम है तो परमेश्वर ने उसके भाई हारून को भी उसके साथ में भेजा। So, younger brother Moses, older brother Aaron, together one team. छोटे भाई मूसा और बड़ा भाई हारून एक मिलकर दल बन गए। See, two witnesses. दो गवाही। So they went to Egypt. वे मिस्र देश में गए। They stood before the Pharaoh of Egypt. जब वो फारोन मिस्र के उस सामने खड़े हुए, As commanded by God, the prophet Moses performed signs and wonders before Pharaoh. मूसा ने परमेश्वर के आदेश के अनुसार फारोन के सामने जो चिन्ह और चमत्कार करके दिखाया, Instead of being awed with wonder and fear of God, वो अचंभा होकर परमेश्वर के भय में भरने के बदले Pharaoh turned and looked at his magicians. फारोन अपने जादूगर की ओर मुड़ के देखा। He said, "Come forward." उसने कहा आगे आओ। When he did, जब उसने ऐसे किया, two magicians, maybe they are twins, stepped forward. दो जादूगर हो सकता है वो जुड़वे हों, एक साथ खड़े हुए। Two witnesses from the evil one. दो गवाही जो दुष्ट की ओर से है, They are called Jannes and Jambres. जिसके नाम जेनस और जेम्ब्रस है। From their names, I figured they may be twins. उनके नाम से मैंने पहचाना कि वे जुड़वे हो सकते हैं। And these guys came and they duplicated the same miracle that Aaron and Moses did. इन लोगों ने वही चमत्कार जो मूसा और हारून ने किया उसका नकल बनाया। Everybody in Pharaoh's court was now shocked. फारोन के राजमहल में रहने वाले सब लोग आश्चर्यचकित हुए। And Moses and Aaron themselves were shocked मूसा हारून दोनों ही चौंक गए, because they have the power of God and they did a miracle. क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है और उन्होंने वो चमत्कार किया। How could pagan worshipping magicians do the same miracles? कैसा अन्य जाति जो उसकी देवता की सेवा करता है वो वही चमत्कार करने पाए। Counterfeit witnesses. गवाही की पलटा देने वाली और गवाहियां। When the two witnesses are doing their ministry in Israel, इस्राएल में जब ये दो गवाही अपनी सेविकाई निभा रहे थे, just like it happened in history, it will be repeated again. जैसे इतिहास में हुआ है वैसे वो फिर से दोहराया जाएगा। Satan, who is the devil and who is the dragon, he raises up two false witnesses. शैतान जो दुष्ट है और जो अजगर है वो समुद्र में से उठता है और वो दो गवाहियों को ले आता है ताकि परमेश्वर की गवाहियों के विरोध में गवाही दे सके। And his two witnesses are called the Antichrist and the false prophet. और उसके दो गवाही को मसीह विरोधी और झूठी भविष्यवक्ता कहलाते हैं। That the false witnesses will also perform signs, wonders and miracles. ये झूठी गवाही देने वाले भी वही चिन्ह और चमत्कार भी करेंगे। The two witnesses of God will call down fire from heaven. ये दो गवाही परमेश्वर के जो हैं वो आसमान से आग को बुलाते हैं।
And the false prophet of Satan will also call down fire from heaven. झूठी भविष्यवक्ताएं जो शैतान के हैं वो भी आसमान से आग को ले आएंगे। Whole world looking at these two events will be shocked, not knowing who to believe, and they will be confused. पूरा संसार इसे देखने वाले चौंक जाएंगे कि किस पर हम विश्वास करें और वे असमंजस में पड़ जाते हैं। Now, who do the two false witnesses represent? और ये दो झूठे गवाही किन लोगों का प्रतिनिधि हैं? The Antichrist will be a civil world leader, मसीह विरोधी संसार की नागरिक अगुवा होगा and the false prophet will be a religious world leader. झूठी भविष्यवक्ता संसार की झूठी धर्मों की अगुवा होगा। So one is a political leader, the other is a religious leader. एक राजनीतिक अगुवा है और दूसरा एक धार्मिक अगुवा है। And the Antichrist, who is been filled with the power of Satan, will do many signs and wonders and miracles. जो मसीह विरोधी शैतान की आत्मा से भरा हुआ है वो भी चिन्ह और चमत्कार करके दिखाएगा। You know, there is one difference. आप जानते एक उसमें फर्क है। The miracles that the true two witnesses do, जो चमत्कार जो सच्चे दो गवाही लोग करेंगे it will give birth to life. वो जीवन को उत्पन्न करेगा। But the miracles that the two false witnesses will do, मगर जो झूठी गवाही वो जो चमत्कार करेंगे the Bible calls them lying wonders. और उसे झूठे अद्भुत करके वचन कहता है। So it's not a true miracle. इसलिए वो सच्ची चमत्कार नहीं है। It's a make-believe lying wonder. वो ऐसे बनाया गया ताकि जो झूठों पर उसके अद्भुत कामों पर विश्वास करने पाए। So just like Jannes and Jambres stood against Moses and Aaron, ठीक जैसा जेनस और जेम्ब्रेस मूसा और हारून के विरोध में खड़े हुए, the Antichrist and the false prophet will stand against the two witnesses of God. मसीह विरोधी और झूठी भविष्यवक्ता परमेश्वर की दो गवाहियों का विरोध में खड़े होंगे। Now that you have remembered what we studied last week, पिछले हफ्ते हमने क्या अध्ययन किया करके अब आपको याद आ गया है, इसलिए now we need to ask a very important question. अब हमें एक महत्वपूर्ण सवाल करना जरूरी है। Who are the two witnesses? ये दो गवाही कौन हैं? Will they physically be on this earth? शारीरिक रीति से क्या वो इस पृथ्वी में होंगे? That question was already answered. ये सवाल पहले से उत्तर दे चुके हैं। If they were not physically on this earth, how can they die? अगर वो शारीरिक रीति से इस पृथ्वी में ना होते तो कैसे वो मर पाएंगे? So, but who are they? मगर वो कौन हैं? What are their identities? उनकी पहचान क्या है? Now, they are first mentioned in the book of Zechariah. जकरिया की पुस्तक में पहली बार इनकी जिक्र किया गया है। In verses 3 to 14. 3 से लेकर 14 पद तक The prophet Zechariah was shown a vision. भविष्यवक्ता जकरिया के लिए एक दर्शन दिखाया गया। In the vision, he saw two olive trees. उस दर्शन में उन्होंने दो जैतून के पेड़ को देखा And he saw two lampstands. और उसने दो दीवटों को देखा। And oil from the two olive trees were flowing into the lampstand. दो जैतून के पेड़ में से तेल उस दीवट के अंदर बह रहा था। But this is how the vision was shown. इस तरीके से ही वो दर्शन दिखाया गया उनके लिए। So, this being the case, और वो संभव ये था, who are they? वो कौन हैं? We have a clue in the book of Revelation concerning who they are. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसके लिए हमारे लिए कौन है करके एक नुक्स वहां पर है। Revelation chapter 11 verse 10 tells us that they were two prophets. प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के 10 पद में कहता है कि वे दो भविष्यवक्ता हैं। You know, there's a difference between an apostle and a prophet. प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के बीच में अंतर है। There's a difference between an evangelist and a prophet. सुसमाचारक और भविष्यवक्ता के बीच में भी अंतर है। There's a difference between a teacher and a prophet. भविष्यवक्ता और अध्यापक में भी अंतर है। There's a difference between a pastor and a prophet. पासवान और भविष्यवक्ताओं के बीच में भी अंतर है। And a difference between a disciple and a prophet. चेला और भविष्यवक्ता के बीच में भी अंतर है। So you may ask a question now, what is the difference? अब आप सवाल कर सकते हैं कि वो अंतर क्या है? Aren't they all part of the fivefold ministry? क्या ये वो सब उस 5 भाग सेविकाई के भागी नहीं हैं? Yes, they are. हाँ, वो तो है। But the calling and the ministry of a prophet is totally different from the others. मगर भविष्यवक्ता की बुलाहट और उसकी सेविकाई बाकी लोगों में से अंतर है, फर्क है।
we cannot deny the fact that every one of the fivefold calling is unique. हम ये इस हकीकत को इनकार नहीं कर सकते हैं, पांचों सेविकाई की बुलाहट अलग अलग है। An apostle is a church planter. प्रेरित कलीसिया की स्थापक है। The modern day missionary comes under two categories. वर्तमान की मिशनरी की सेवा करने वाले दो विभाजन में आते हैं। He is an apostle and an evangelist. वो एक प्रेरित भी है और सुसमाचारक भी है। So an apostle is a sent one, प्रेरित जो भेजा हुआ व्यक्ति है, and they go to plant a new work. वे जाते हैं नए काम को शुरुआत करने के लिए। Today the title apostle is very loosely used, आज ये नामलेख प्रेरित बहुत ही हल्के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, but the apostle Peter gives a very clear guidance or clear guideline how an apostle should be chosen. प्रेरित पत्रस एक बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शन देता, विवरण देता है कि एक प्रेरित किस तरीके से नजर आते हैं। And the apostle Paul too writes in his epistles giving clear guideline how and who qualifies to be an apostle. प्रेरित पौलुस भी अपने पत्रों में बहुत ही स्पष्ट और विवरण देते हैं कि एक प्रेरित किस तरीके से नजर आते हैं, उनका कार्य क्या होता है। Firstly, an apostle has a deep personal relationship with the Lord Jesus Christ. पहला, एक प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के साथ एक गहरी रिश्ता और संबंध में रहते हैं। Secondly, his ministry is demonstrated by powerful signs and wonders. दूसरा, उनके सेविकाई चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा साबित किया जाएगा। Thirdly, it must have the marks of suffering on his life. तीसरा, उनके जीवन में दुख उठाने की निशानी होगी। If you take this Pauline guideline and compare with many apostles today, पौलुस की दिया हुआ मार्गदर्शन को अगर आप आज के प्रेरितों के साथ तुलना करके देखेंगे, almost all of them will fail. मैं कह सकता हूँ सब के सब उसमें हार जाएंगे। But let's just look at what the apostle Paul says. मगर आइए हम सिर्फ प्रेरित पौलुस जो कहता है उसे हम ध्यान दें। They are firstly sent by God, पहला, वो परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए हैं, called and sent out. बुलाए गए और भेजे गए हैं। So they have a special call उनके लिए एक खास बुलाहट है, and a clear direction where to go. एक स्पष्ट मार्गदर्शन कि कहाँ जाना है। Secondly, they have a powerful signs and wonders ministry. उनके पास दूसरा, चिन्ह और चमत्कार की सामर्थ्य एक सेविकाई होगा। To have a signs and wonders ministry, they must be powerful preachers. एक चिन्ह और चमत्कार भरपूर एक सेविकाई निभाना है तो उनको एक सामर्थ्य प्रचारक बनना है। That is preaching the gospel of the kingdom of God. वो प्रभु परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार है। And thirdly, they must have the marks of suffering. तीसरा, उनके अंदर दुख उठाने की निशानी होगा। So these are the signs of a true apostle. यही वो चिन्ह है कि सच्चे प्रेरितों का। And the apostolic ministry is like the one of the four living creatures which represents the calf. प्रेरितों की सेविकाई जो चार पशुओं के बारे में जो बताया गया उसमें से एक जो बछड़ा है उसकी निशानी है। To farm a land, many factors are involved. एक जमीन और खेत को तैयार करने के लिए काफी चीजें और बहुत सारी चीजें उसमें शामिल है। One of the factor is the cow. उनमें से एक जो है गाय। The cow fallows the land. गाय उस खेत की हल जोतता है And that is called the foundational ministry. और उसी को बुनियादी सेविकाई कहते हैं। Without fallowing the ground, the sower cannot sow seeds. जमीन और खेत को बिना हल जोते बीज बोने वाला बो नहीं सकता है। So an apostolic ministry is like that. एक प्रेरिताई की सेविकाई इसी प्रकार है। They go to a place, they break up the ground. वे एक स्थान में जाते हैं और उस जमीन को तोड़ते हैं। That is the pure apostolic ministry. और यही शुद्ध प्रेरिताई की सेविकाई है। And then follows the other ministries. और बाद में बाकी सेविकाई उसके साथ साथ चलता है। And next we read about the ministry of evangelists. अगला हम सुसमाचारक की सेविकाई के विषय में बात करते हैं। During my ministry years in Tibet, तिब्बत में मेरी सेविकाई के समय पर I once went to the southern part of Tibet called Setang. मैं दक्षिणी इलाका जो तिब्बत में वहाँ पे गया जिसका नाम शैतांग है। And I witnessed the Tibetan way of farming. तिब्बती लोगों के द्वारा खेती के काम की गवाही मैंने दिया। First I saw a man plowing the ground with two yaks. पहले एक व्यक्ति को मैं देखा जो अपनी जमीन को दो जंगली बैलों को रखकर हल जोत रहा था। The plow is yoked on the neck of the yaks. जंगली बैलों के गर्दन में
ये हल जोतने वाली जुआ लगाया गया। So then a farmer leads the yak, and as they go, they break out the ground. और जैसे वो किसान उन बैलों की अगुवाई देता है तो वो हल जमीन को तोड़ता है। So as the ground is all broken up, जैसे अभी एक पूरा जमीन टूट चुका है, then I saw another man come. और बाद में एक व्यक्ति को आता हुआ मैं देखता हूँ। He was a sower. वो बोने वाला है। He had a bags full of seed with him, उसकी थैला भर में बीज भरा हुआ है and he took the seed and was throwing on the fallow ground. और वो टूटी हुई उस जमीन पर उस बीज को फेंकने लगा। And after him comes a third guy. उसके बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है। He had a long stick उसके हाथ में एक लंबी छड़ी थी which was attached to a flat base. और जो लंबी छड़ी उसमें नीचे के भाग में एक पटिया लगा हुआ था। With that he was stamping on the ground. और जिससे वो उस जमीन पर तपतपा रहा था। When he did that, जब ऐसे उसने किया, the ground that was opened up for the seed to fall was all closed up. जो जमीन खुल गया था जो बीज को बोने के लिए, वो अभी बंद हो गया। Then came the fourth guy. अब ये चौथा व्यक्ति आता है। He had a pail of water. उसके पास पानी था He was just watering the ground where they had fallowed. और जिन लोगों ने वहाँ पे बोया है तो तोड़ा गया था, वहाँ पर वो पानी बहाने लगा। So 4 men were involved in the planting work. वहाँ पे बीज लगाने के काम में 4 पुरुष लोग शामिल थे। Now look at this prophetic picture now. अब ये भविष्यवाणी रूप की इस तस्वीर को देखिए। The first man that used the yaks to fallow the ground is equivalent to the apostolic ministry. पहला व्यक्ति जो बैल को इस्तेमाल किया कि हल जोतने के लिए जमीन पर, वो प्रेरितों की सेविकाई की तुल्य है। And the second man who sowed the seed is compared to the evangelist ministry. दूसरा व्यक्ति जो बीज बो रहा था वो सुसमाचार की सेवक के तुल्य है। The third man who had a long stick with a flat base that was hitting on the ground represents the teaching ministry. तीसरा व्यक्ति जो लंबे छड़ी के नीचे जो पटिया रख के उसके ऊपर तपतहा रहा था, वो एक शिक्षा देने वाले सेवक के रूप में है। Because it's the teacher who grounds people in the word of God. क्योंकि एक शिक्षक ही है लोगों को परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ने के लिए मदद करते हैं। And the fourth man who came to water the ground is compared to the pastoral ministry. चौथा व्यक्ति जो आया था कि उस जमीन पर पानी जो डालने के लिए, वो पासवान की सेविकाई को दिखाता है। Because it's the pastor who nurtures the plant. क्योंकि पासवानी है उस पौधे की देखरेख करता है। So this is how the fourfold ministers are involved in the work of God. ठीक ऐसा ही ये 4 प्रकार के सेवक लोग प्रभु की सेविकाई में वो शामिल रहते हैं। Then comes one very important ministry. और बाद में एक महत्वपूर्ण सेविकाई आता है, The fifth man. 5वां व्यक्ति। Now before they can fallow the ground, sow the seed and do all the other works, पहला उस खेत में हल जोतकर बीज बोने और पानी डालने से पहले a wise farmer must discern the weather. एक बुद्धिमान किसान वो मौसम को परखता है। So the person who discerns is compared to the prophet's ministry. जो व्यक्ति उन चीजों को परखता है वो भविष्यवक्ता की सेविकाई के साथ तुल्य है। Unlike all the other 4 ministries, बाकी 4 सेविकाओं के अलग the prophet is always looking up to heaven. भविष्यवक्ता हर वक्त स्वर्ग की ओर देखते रहते हैं। We read this in Habakkuk chapter 2 verse 1. इस विषय के बारे में हबक्कुक 2 अध्याय 1 पद में देखते हैं। They are required to stand before the presence of God. उनकी जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति के सामने खड़े हों। They are required to wait on God. जरूरी है कि वो परमेश्वर के लिए इंतजार करें। They are required to see what God is doing. उनके लिए जरूरत है कि वो देखें कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं। They are required to hear what God is speaking. उनके लिए जरूरत है कि वो सुनने पाए कि परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं। They are required to know what God is going to do. जरूरत है उन्हें जानने के लिए कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं। And then they must communicate to the people. तब उसे लोगों को बताना है। So this is the ministry of the 2 witnesses. और ये 2 गवाहियों का सेविकाई यही है। They are prophets. वे भविष्यवक्ता हैं। And one remarkable characteristics of a prophet is they always stand before God and man. एक महत्वपूर्ण निशानी जो भविष्यवक्ता का ये है कि वे लगातार परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े रहते हैं। Let's just imagine for talk's sake, this image is representing God and this image representing man. विचार को समझने के लिए एक कल्पना करके देख लीजिए कि ये जो तस्वीर परमेश्वर को दर्शाता है और ये तस्वीर जो है मनुष्य को दर्शाता है। And I in the center represents the prophet. मैं जो अभी बीच में हूँ भविष्यवक्ता को दर्शाता हूँ।
So when I turn and face in this direction towards man, इस दिशा की ओर मुड़कर जब मनुष्य को देखने लगूं, then the prophet has received a message from God and is going to communicate to men. तब भविष्यवक्ता परमेश्वर से संदेश को पाया है और मनुष्य को बताने वाला है। So in this case, the prophet becomes God's representative. और इस समय पर वो परमेश्वर का प्रतिनिधि बन जाता है। He becomes God's spokesman. अब वो परमेश्वर के पक्ष में बोलने वाला बन जाता है। We read this in Exodus chapter 4. और इस विषय में निर्गमन 4 अध्याय में पढ़ते हैं। Then if the prophet turns to the left to face this image as representing God, अगर व्यक्ति इस तरफ मुड़कर इस दिशा की ओर देखने लग जाए जो परमेश्वर को दर्शाता है, then that prophet becomes an intercessor. तब भविष्यवक्ता एक मध्यस्थ बन जाता है। He takes all the problem of man or a nation upon his own shoulder and make petition against the living God. सारे लोगों की, राष्ट्रों की वो बोझ को अपने ऊपर कांधों पे ले लेता है और परमेश्वर से उसके लिए मध्यस्थता करता है। But the prophet is like an eagle. मगर एक भविष्यवक्ता एक उकाब के समान है। Among all the birds that you have seen in nature, प्रकृति में हर एक जो पक्षी आप देखते हैं उन सब से only the eagle is a rare bird that flies the highest in the sky. सिर्फ उकाब ही एक ऐसे एक मात्र पक्षी है बहुत सारे पक्षियों में से जो ऊंची उड़ान उड़ता है आसमानों में। And it always faces the sun with its naked eyes. अपने खुले आंखों में सीधा वो सूरज की ओर देखता रहता है। So that is the prophet's ministry. और यही भविष्यवक्ता की सेवकाई है। He's always soaring in the heavenlies, looking unto the living God to get messages from God, to hear what God will speak. स्वर्गीय स्थानों में वो मंडराता रहता है, ऊंचा उड़ान उड़ता रहता है, परमेश्वर की ओर देखता रहता है कि परमेश्वर की संदेश लोगों के लिए पाते रहें। So this is the ministry of the two witnesses. और यही 2 गवाहियों का सेवकाई है। They are prophets of God. वे परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं। And we will continue this subject next week. हम इस विषय को अगले हफ्ते जारी रखेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049।